چپ رہنے کا کیا لوگے، مجھے بتانے کا کیا لوگے، اسے بلانے کا کیا لوگے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیا لوگے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں what will you take to۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ what will you take to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس آبجیکٹ پلس کوسچن مارک اگر لکھنا ہو تو۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ چپ رہنے کا کیا لوگے، what will you take to keep quiet، what will you take to keep quiet، مجھے بتانے کا کیا لوگے، what will you take to tell me، what will you take to tell me، اسے بلانے کا کیا لوگے، اسے بلانے کا کیا لوگے، what will you take to invite him، what will you take to invite him۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ۔ میری مدد کرنے کا کیا لوگے، میری مدد کرنے کا کیا لوگے، what will you take to help me، what will you take to help me۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کمنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ یہاں سے جانے کا کیا لوگے، یہاں سے جانے کا کیا لوگے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے، یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے، وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے۔ ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی بات ہے، اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں نو پوائنٹ این۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ دیا پلس ہیلپنگ ورب جس کو آگزیلری ورب بھی کہا جاتا ہے، یہ ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق ہوتا ہے، پلس نو پوائنٹ این پلس ورب پلس ING پلس ادر ورڈز۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں بتانا نہ بتانا ایک ہی بات ہے، there is no point in telling you، there is no point in telling you۔ telling یہ ورب پلس ING ہے جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں رکنا نہ رکنا ایک ہی بات ہے، there is no point in staying here، there is no point in staying here۔ وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے، وہاں جانا نہ جانا ایک ہی بات ہے، there is no point in going there، there is no point in going there۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں ایسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ one more example for better understanding۔ جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے، تم سے بات کرنا نہ کرنا ایک ہی بات ہے، there is no point in talking to you، there is no point in talking to you۔ اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے، اس سے ملنا نہ ملنا ایک ہی بات ہے۔ سبسکرائب ٹو انگلش PS فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں، تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں، تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں۔ ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے ڈو یو ایون نو پلس ورب پلس ING پلس آبجیکٹ پلس اور نوٹ، اور اگر لکھنا ہو تو کوسچن مارک۔ اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ تمہیں کھانا بنانا آتا بھی ہے یا نہیں، ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ، ڈو یو ایون نو کوکنگ فوڈ اور نوٹ۔ تمہیں کھیلنا آتا بھی ہے یا نہیں، ڈو یو ایون نو پلینگ اور نوٹ، ڈو یو ایون نو پلینگ اور نوٹ۔ تمہیں پڑھنا آتا بھی ہے یا نہیں، ڈو یو ایون نو ریڈنگ اور نوٹ،
डू यू इवन नो रीडिंग और नोट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें अंग्रेजी बोलनी आती भी है या नहीं। डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। डू यू इवन नो स्पीकिंग इंग्लिश और नॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं। तुम्हें लिखना आता भी है या नहीं। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा होता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट वुड हैव बीन बेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट वुड हैव बीन बेटर प्लस एफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हेड नोट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा होता अगर तुम ऐसा न करते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड नॉट डन सो। अच्छा होता अगर वो यहाँ आता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड कम हियर। अच्छा होता अगर तुम कामयाब होते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। इट वुड हैव बीन बेटर इफ यू हैड पास्ड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा होता अगर वो मुझसे न मिलता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मेट मी। इट वुड हैव बीन बेटर इफ ही हैड नॉट मेट मी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। अच्छा होता अगर हम मैच जीत जाते। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं परेशानी की बात यह है कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द प्रॉब्लम इज़ दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। द प्रॉब्लम इज़ दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। द प्रॉब्लम इज़ दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन परेशानी की बात यह है कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। परेशानी की बात यह है कि वो मेरे सारे राज जानता है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही नोज ऑल माई सीक्रेट। परेशानी की बात यह है कि मुझे अंग्रेज़ी बोलना नहीं आती। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। द प्रॉब्लम इज़ दैट आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। परेशानी की बात यह है कि उसने मुझे पहचान लिया। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही रिकग्नाइज्ड मी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं इससे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। परेशानी की बात यह है कि उसके पास पैसों की कमी है। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस। द प्रॉब्लम इज़ दैट ही हैज़ मनी क्राइसिस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। परेशानी की बात यह है कि मैं तुम्हारे खर्चे नहीं उठा सकता। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। ये मालूमात सही निकली, वो चोर निकला, तुम गलत निकले। इस लेसन के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फ़िक्रे अंग्रेज़ी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं निकली, निकला या निकले। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में
turned out to be। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा turned out to be, और turned out to be के बाद हमें यूज करना है अदर वर्ड्स में कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। ये मालूमात सही निकली। This information turned out to be correct. This information turned out to be correct. Information mean मालूमात, और सही के लिए हम यूज करते हैं correct. One more example for better understanding. वो चोर निकला। He turned out to be a thief. He turned out to be a thief. तुम गलत निकले। You turned out to be wrong. You turned out to be wrong. One more example for better understanding. ये रास्ता सबसे छोटा निकला। This path turned out to be shortest. This path turned out to be shortest. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो पुलिस वाली निकली। She turned out to be a policewoman. She turned out to be a policewoman. ये बात गलत निकली। This statement turned out to be incorrect. This statement turned out to be incorrect. वो सही निकला। He turned out to be right. He turned out to be right. One more example for better understanding. ये बात सच निकली। This statement turned out to be true. This statement turned out to be true. One more example for better understanding. अफवाहें झूठी निकली। The rumors turned out to be false. The rumors turned out to be false. One more example for better understanding. उसकी पेशन गोई सच निकली। Her prediction turned out to be accurate. Her prediction turned out to be accurate. और आखिर में ये दो फकरात आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसका फैसला सही निकला। दूसरा फकरा है ये किताब दिलचस्प निकली। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। मुझे पता था कि वो आएगा। मुझे पता था कि तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे। इस लेसन के अंदर आप सीखने जा रहे हैं कि कब और कहाँ ऐसे फ़करे अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़करे हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मुझे मालूम था या मुझे पता था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आई न्यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आई न्यू प्लस डेट के बाद आ जाया करेगा सब्जेक्ट के बाद हमें यूज़ करना है वुड, और नेगेटिव सेंटेंस के लिए वुड या वुडंट के बाद आ जाया करेगा V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद आ जाया करेगा अदर वर्ड्स अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी यानी पास्ट में माजी में मुझे पता था, मुझे मालूम था कि फ्यूचर में आने वाले वक्त में उसे ये नौकरी मिल जाएगी। ये सेंटेंसेस ये फ़करे हम तब यूज़ करते हैं जब हम पास्ट में माजी में फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी पास्ट में मुझे मालूम था कि फ्यूचर में उसे नौकरी मिल जाएगी। होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। मुझे मालूम था कि उसे ये नौकरी मिल जाएगी। आई न्यू दैट ही वुड गेट दिस जॉब। I knew that he would get this job. One more example for better understanding. मुझे पता था कि वो आएगा यानी पास्ट में मुझे पता था कि फ्यूचर में
وہ آئے گا، یہ فیوچر کے پاسٹ سے ریلیٹڈ سینٹینس ہے۔ اگر ہمیں ایسا کہنا ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آئے گا، تو پھر ہمیں would کے بجائے will یوز کرنا ہے۔ سو مجھے پتہ تھا کہ وہ آئے گا، I knew that he would come۔ اور اگر ہمیں ایسا کہنا ہو کہ مجھے پتہ ہے کہ وہ آئے گا، تو پھر ہمیں ایسا کہنا ہے انگریزی زبان میں I know that he will come۔ ہوپ کہ یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، مجھے پتا تھا کہ تم مجھے فون نہیں کرو گے، یہ نیگیٹو فیکٹر ہے۔ I knew that you wouldn't call me۔ I knew that you wouldn't call me۔ wouldn't یہ would not کا شارٹ فارم ہے۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، مجھے معلوم تھا کہ بارش ہوگی، یعنی مجھے پتا تھا پاسٹ میں کہ فیوچر میں بارش ہوگی۔ I knew that it would rain۔ I knew that it would rain۔ بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں۔ آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level۔ Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے۔ مجھے پتا تھا کہ وہ میچ جیتے گا۔ I knew that he would win the match۔ I knew that he would win the match۔ One more example for better understanding، مجھے پتا تھا کہ تم اس سے شادی نہیں کرو گے۔ I knew that you wouldn't marry her۔ I knew that you wouldn't marry her۔ One more example for better understanding، مجھے معلوم تھا کہ تم اس کام کو ختم کرو گے۔ I knew that you would finish this work۔ I knew that you would finish this work۔ One more example for better understanding، مجھے پتا تھا کہ تم ہار نہیں مانو گے۔ I knew that you wouldn't give up۔ I knew that you wouldn't give up۔ One more example for better understanding، مجھے پتا تھا کہ تم نہیں آؤ گے۔ I knew that you wouldn't come۔ I knew that you wouldn't come۔ مجھے پتا تھا کہ وہ تم سے ملے گا۔ I knew that he would meet you۔ I knew that he would meet you۔ اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے، کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا۔ مجھے پتا تھا کہ تم اسے نہیں بلاؤ گے۔ مجھے پتا تھا کہ تم اسے نہیں بلاؤ گے۔ دوسرا فقرہ ہے مجھے پتا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ مجھے پتا تھا کہ ہم نہیں جائیں گے۔ سبسکرائب ٹو انگلش پیئرس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر۔ تھینکس۔ کیوں نہ ہم سو جائیں، کیوں نہ ہم کام بانٹ لیں، کیوں نہ ہم کھانا کھائیں۔ ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ایسے فقرے ضرور بولتے یا سنتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کیوں نہ ہم۔ اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں وائی ڈونٹ وی۔ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں۔ وائی ڈونٹ وی پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جایا کرے گا ادر ورڈس اگر ہے تو، اور آخر میں کوسچن مارک اگر لکھنا ہے تو۔ اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کیوں نہ ہم سو جائیں، وائی ڈونٹ وی سلیپ۔ وائی ڈونٹ وی سلیپ۔ سلیپ یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب وچ مین سو جانا۔ وائی ڈونٹ وی مین کیوں نہ ہم۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کیوں نہ ہم کام بانٹ لیں، کیوں نہ ہم کام بانٹ لیں۔ وائی ڈونٹ وی ڈیوائڈ دا ورک۔ وائی ڈونٹ وی ڈیوائڈ دا ورک۔ ڈیوائڈ مین بانٹنا یا تقسیم کرنا اور ورک مین کام۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کیوں نہ ہم کھیلیں، کیوں نہ ہم کھیلیں۔ وائی ڈونٹ وی پلے۔ وائی ڈونٹ وی پلے۔ پلے یہ V1 ہے یعنی فرسٹ فارم آف ورب جس کو بیس فارم آف ورب بھی کہا جاتا ہے وچ مین کھیلنا، اور وائی ڈونٹ وی مین کیوں نہ ہم۔ نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کیوں نہ ہم اس معاملے کو یہی ختم کریں، کیوں نہ ہم اس معاملے کو یہی ختم کریں۔ وائی ڈونٹ وی فنش دس میٹر ہیئر۔ وائی ڈونٹ وی فنش دس میٹر ہیئر۔ میٹر مین معاملہ۔ ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ، کیوں نہ ہم جائیں، کیوں نہ ہم جائیں۔ وائی ڈونٹ وی گو۔ وائی ڈونٹ وی گو۔ اور آخر میں یہ دو فقرات آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں ان کا جواب ضرور دینا۔ کیوں نہ ہم کھانا پکائیں، کیوں نہ
हम खाना पकाए, और दूसरा फकरा है क्यों ना हम कमरा साफ करें, क्यों ना हम कमरा साफ करें। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। एट प्लस एज के बाद नो, नो के बाद वर्ब प्लस ING जिसको जरंड भी कहा जाता है, जरंड के बाद मैटर। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इसमें सोचने की क्या बात है, यानी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो थिंकिंग मैटर, इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। एट के बाद एज के बाद नो, नो के बाद थिंक प्लस वर्ब यानी थिंक प्लस ING जिसको जरंड भी कहते हैं, थिंकिंग, और थिंकिंग के बाद मैटर। सुन, इसमें सोचने की क्या बात है, इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। सो यू कैन सिंपली से दैट इट इज़ नो थिंकिंग मैटर। सो वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें रोने की क्या बात है, यानी इसमें रोने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो क्राइंग मैटर, इट इज़ नो क्राइंग मैटर। एट के बाद एज के बाद नो, नो के बाद वर्ब प्लस ING यानी क्राइंग जिसको जरंड भी कहा जाता है, इसके बाद मैटर। इसमें रोने की क्या बात है, इट इज़ नो क्राइंग मैटर। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है, यानी इसमें नाराज़ होने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो गेटिंग एंग्री मैटर, इट इज़ नो गेटिंग एंग्री मैटर। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसमें पूछने की क्या बात है, यानी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। इट इज़ नो आस्किंग मैटर, इट इज़ नो आस्किंग मैटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। इसमें कहने की क्या बात है, इसमें कहने की क्या बात है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस। याद करोगे कि कोई मेल आता, याद करोगे कि था कोई, याद करोगे कि किसी ने समझाया था। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं याद करोगे कि। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू विल मिस दैट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। यू विल मिस दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का ही होगा। यू विल मिस दैट ये वही का वही रहेगा, विच मीन याद करोगे कि। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। याद करोगे कि कोई मेल आता, यू विल मिस दैट समवन मेट, यू विल मिस दैट समवन मेट। समवन मेट ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से। यू विल मिस दैट मीन याद करोगे कि। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद करोगे कि था कोई, यू विल मिस दैट देयर वाज समवन, यू विल मिस दैट देयर वाज समवन। यू विल मिस दैट मीन याद करोगे कि, देयर वाज समवन मीन था कोई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। याद करोगे कि किसी ने समझाया था, याद करोगे कि किसी ने समझाया था। यू विल मिस दैट समवन मेड यू अंडरस्टैंड, यू विल मिस दैट समवन मेड यू अंडरस्टैंड। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। याद करोगे कि था कोई पागल लड़का, याद करोगे कि था कोई पागल लड़का। यू विल मिस दैट देयर वाज अ क्रेजी बॉय,
You will miss that there was a crazy boy. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। याद करोगे कि कोई आया था ज़िंदगी में, याद करोगे कि कोई आया था ज़िंदगी में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है तुम में, क्या कमी है उसमें। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या कमी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट इज़ लैकिंग इन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हाट इज़ लैकिंग इन प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या कमी है मुझ में, क्या कमी है मुझ में। व्हाट इज़ लैकिंग इन मी, What is lacking in me? क्या कमी है तुम में। What is lacking in you? What is lacking in you? क्या कमी है उसमें। What is lacking in her? What is lacking in her? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। क्या कमी है हम में, क्या कमी है हम में। व्हाट इज़ लैकिंग इन अस, What is lacking in us? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी थी मुझ में। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है, तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है, मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ में रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पढ़ सकता है, पढ़ सकती है या पढ़ सकते हैं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मे हैव टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको मे हैव टू। मे हैव टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। V1 के बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना घर बेचना पड़ सकता है। आई मे हैव टू सेल माई हाउस, आई मे हैव टू सेल माई हाउस। आई ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है, सेल मीन बेचना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है बिल्कुल डे टू डे लाइफ का कॉमन सेंटेंस है जो रोज़ हम बोलते या सुनते हैं। ऐसे फ़िक्रात अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में। यू मे हैव टू गो दिया, यू मे हैव टू गो दिया यानी तुम्हें वहाँ जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। आई मे हैव टू लीव माई स्टडी, आई मे हैव टू लीव माई स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें घर जाना पड़ सकता है, तुम्हें घर जाना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो होम, यू मे हैव टू गो होम। यू ये सब्जेक्ट है, मे हैव टू मीन पढ़ सकता है। मे हैव टू के फौरन बाद V1 यानी बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आया है यानी गो। ये V1 है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है, तुम्हें क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसने जो भी कहा वो सही था, मैंने जो भी सोचा वो सही था, तुमने जो भी किया वो सही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने जो भी कहा वो सही था। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट, व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। मैंने जो भी सोचा वो सही था। व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट,
whatever I thought was right. تم نے جو بھی کیا وہ صحیح تھا. whatever you did was right. سمجھو چلا گیا, سمجھو ہو گیا, سمجھو بول دیا, سمجھو بتا دیا. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں سمجھو. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں کنسیڈر. کنسیڈر مین سمجھو. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. کنسیڈر پلس 8 پلس V3 یعنی تھرڈ فارم آف ورب. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. لیٹس سی سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. سمجھو چلا گیا, کنسیڈریٹ گون, کنسیڈریٹ گون. سمجھو ہو گیا, کنسیڈریٹ ڈن, کنسیڈریٹ ڈن. سمجھو بول دیا, کنسیڈریٹ اسپوکن, کنسیڈریٹ اسپوکن. سمجھو بتا دیا, کنسیڈریٹ ٹولڈ, کنسیڈریٹ ٹولڈ. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. سمجھو سیکھ گیا, سمجھو سیکھ گیا. سبسکرائب انگلش پیس فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. تھینکس مننا. ایسا کچھ بھی نہیں جیسے میں بول نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں جیسے میں کر نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں خرید نہیں سکتا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں یا ایسا کچھ نہیں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں دیئر از نتھنگ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. دیئر از نتھنگ پلس کاما اگر لکھنا ہو تو پلس سبجیکٹ پلس کانٹ. کانٹ یہ کہ نوٹ کا شارٹ فارم ہے پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں جیسے میں بول نہیں سکتا. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ اسپیک. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ اسپیک. دیئر از یہ دیئر ایز کا شارٹ فارم ہے. ایسا کچھ بھی نہیں جیسے میں کر نہیں سکتا. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ ڈو. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ ڈو. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں خرید نہیں سکتا. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ بائی. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ بائی. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں سیکھ نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں سیکھ نہیں سکتا. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ لرن. دیئر از نتھنگ آئی کانٹ لرن. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں پکا نہیں سکتا. ایسا کچھ بھی نہیں جو میں پکا نہیں سکتا. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. بات یہ ہے کہ تمہیں اس سے ملنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اسے وہاں جانا چاہیے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں بات یہ ہے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the point is that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. the point is that پلس سینٹنس. سینٹنس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے چینج ہو سکتا ہے. the point is that یہ وہی کا وہی رہے گا which mean بات یہ ہے کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. the point is that we should help others. the point is that we should help others. بات یہ ہے کہ تمہیں اس سے ملنا چاہیے. the point is that you should meet him. the point is that you should meet him. بات یہ ہے کہ اسے وہاں جانا چاہیے. the point is that he should go there. the point is that he should go there. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں, بنا سکتے ہیں. اسے بہت سے جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فار یو. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ سمجھتا نہیں ہے. the point is that he doesn't understand. the point is that he doesn't understand. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بات یہ ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے. بات یہ ہے کہ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹنس اسٹرکچر. چکھ کر بتاتا ہوں.
वापस आकर बताता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ing। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ, यानी चेकने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ing है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक, आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ, सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ, देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।